Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss cell. So cell, it is the next topic of electrochemistry. So what is cell? It is a device which is used to convert electrical energy into chemical energy or we can say chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट मीन्स सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेल. सो जनरली सेल इज ऑफ टू टाइप. सो फर्स्ट वन इज electrolytic cell and second one is electrochemical cell. So electrolytic cell, what is electrolytic cell? Those cell in which electrical energy is converted into chemical energy. It means ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में. Then this type of cell is called as electrolytic cell. And listen, when chemical energy converted into electrical energy, then the device in which chemical energy is converted into electrical energy, then that is called as electrochemical cell. So in case of electrolytic cell, there is a single container, but in case of electrochemical cell, there are two separate containers. So in case of electrolytic cell, two electrodes, anode and cathode, which are dipped into an electrolytic solution. For example, electrolytic solution, here it is taken aqueous solution of NaCl. It means electrolytic cell में हम लोग एक electrolytic solution लेते हैं. Electrolytic solution means electrolyte means salt plus water means H2O. तब हमारा क्या बन जाता है? Electrolytic solution. So this is electrolytic solution and this is NaCl salt. What is this? This is electrolyte. It means इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बन जाता है और यही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम कंटेनर में लेते हैं. एंड लिसन, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड and second is cathode, are taken in electrolytic cell. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, पहला एनोड और दूसरा कैथोड. एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड कैथोड इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. सो लिसन, नाउ वी पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल. होता क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मीन्स टू ब्रेक. इट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इट मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सी प्रोसेस होती है? इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस. So electrolysis, due to electrolysis, electrical energy changes into chemical energy. तो जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उससे क्या होते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. सो लिसन, सो व्हाट केमिकल चेंजेस occurs in electrolytic solution? So listen, this
electrolytic solution NaCl aqueous, it will change into 2Na and Cl2 gas. It means जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था NaCl का एक्वस सोल्यूशन, वो सॉलिड सोडियम और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है. सो सॉलिड सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. इट मीन्स अगर NaCl के एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें सॉलिड सोडियम मिलेगा. जो सॉलिड सोडियम यहाँ बनता है वो कैथोड पर आके डिपॉजिट हो जाता है या चिपक जाता है, जबकि जो गैस है क्लोरीन गैस वो कहाँ बनती है, एनोड पर बनती है. सो लिसन, Cl2 gas is released at anode. So listen, what is electrolysis? So it involves in electrolytic cell, and this process involves the decomposition of electrolytic solution in the presence of electricity. In the presence of electricity, and this process is called as electrolysis. And due to this process, solid substance is obtained. It get deposited at cathode. Gaseous substance like chlorine gas, which is obtained and it is released at anode. And listen, if any liquid substance will be obtained, it means अगर कोई liquid substance हमारा obtained होता तो वो इलेक्ट्रोड पर डिसॉल्व हो जाता. इट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस जो बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो हमारे इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं. लिक्विड सब्सटेंस जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोड में डिसॉल्व होते हैं, और जो हमारा गैसियस सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोड पर रिलीज होता है. सो लिसन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस एंड दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ वी विल डिस्कस हाउ सोडियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस. अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो सोडियम और क्लोरीन गैस में कैसे टूट जाता है. तो होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, देन लिसन, होता क्या है, जो हमारा NaCl है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये वाटर में दो आयंस देता है, Na+ और Cl- आयन. एंड लिसन, द ऑब्टेन्ड Cl- आयन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स NaCl में जो Cl- आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड इट विल फॉर्म Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो Cl- आयन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. इट मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन होगा Cl- का, और ये Cl2 गैस बनेगी. और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमेशा कहाँ होती है, एट एनोड. इसलिए जो Cl2 गैस हमारी रिलीज होती है वो कहाँ होती है, एट एनोड. नाउ द ऑब्टेन्ड Na+ आयन, जो हमारा Na+ आयन बनता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से, दिस विल एक्सेप्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये क्या बनाता है, मेटालिक सोडियम. इट विल फॉर्म मेटालिक सोडियम. सो Na+ आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये प्रोसेस होगी रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, एट कैथोड. इट मीन्स कैथोड पर. इसलिए जो मेटालिक सोडियम है वो हमारी कहाँ डिपॉजिट होती है, कैथोड पर. So listen, these are the process which involves in electrolytic cell. Another example we can say electrolysis of molten sodium chloride. It means melt sodium chloride की भी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें सोडियम और क्लोरीन गैस मिलती है. So listen, this is the first cell, electrolytic cell. सेकेंड सेल में हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. इसमें हम लोग 2 सेपरेट कंटेनर यूज करते हैं. एक में जिंक रॉड लेते हैं और एक में कॉपर रॉड लेते हैं. जिंक रॉड वाला इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह वर्क करता है, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड हमारा
कैथोड की तरह वर्क करता है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड को हम एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, और जिंक रॉड को हम लोग ZnSO4 के सोल्यूशन में लेते हैं, और कॉपर रॉड को हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं। एंड लिसन, दोनों ही कंटेनर को हम लोग साल्ट ब्रश से अटैच कर देते हैं, जो कि सर्किट को कंप्लीट करता है। बट यहां पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह वर्क करता है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन इन electrochemical cell, and copper electrode which acts as cathode, it is represented by positive sign। और कैथोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा होता है, एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से। थैंक यू। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ cell is electrochemical cell। Electrochemical cell, it is also called as Daniell cell, galvanic cell and voltaic cell। So listen, electrochemical cell is also called as Daniell cell, galvanic cell and voltaic cell। So what is electrochemical cell? It is a device which is used to convert केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। नाउ लिसन, वी कैन सी देयर आर टू सेपरेट कंटेनर्स इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कंटेनर्स। दिस इज कंटेनर 1, this is container 2। So in the first container, a metal electrode is taken and it is dipped in its solution। For example, if zinc metal electrode is taken, then it is dipped in ZnSO4 aqueous solution। It means पहले कंटेनर में हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिंक, तो जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक रॉड लेंगे और उसे जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। एंड लिसन, इन फर्स्ट कंटेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, पहले कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर होती है। सो लिसन हियर, नाउ इन सेकेंड कंटेनर अनदर इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, is taken and this copper rod or copper electrode is dipped in copper sulfate solution, aqueous solution of copper sulfate or aqueous solution of CuSO4। So listen, in case of first container, zinc electrode is dipped in ZnSO4 aqueous solution, and in case of second container, copper electrode is taken which is dipped in copper sulfate aqueous solution। So listen, in electrochemical cell there are two separate half cells, each container is called as half cell। And listen, zinc rod is oxidized, and listen, due to oxidation of zinc rod in first container, this electrode is called as anode, this half cell is taken as anode। And listen, in second container, Cu+2 ion from solution, Cu+2 ion from solution accept 2 electron and they will form metallic copper। So this is the process of reduction। So reduction always occurs at cathode। So listen, second half cell acts as cathode। Now listen, we can say
हाउ केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। सो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेन टू सेपरेट कंटेनर or we can say two half cells which contain zinc and copper rod respectively. Zinc rod is dipped in ZnSO4 aqueous solution, copper rod is dipped in copper sulfate aqueous solution. These two containers are connected by salt bridge. These two containers are connected by salt bridge. This salt bridge is used to complete the circuit. And listen, these metallic rod of zinc rod, zinc rod and copper rod are connected by a metallic wire or conductor. And listen, the chemical energy which changes into electrical energy and it is measured as EMF of the cell. इट मीन्स इस सेल में जो केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे ईएमएफ के फॉर्म में हम लोग वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर लेते हैं। नाउ लिसन, दीज टू सेपरेट कंटेनर्स आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। सो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज, इट इज अ ट्यूब विच कंटेन the solution of KCl, KNO3 and NH4NO3. It means ये एक ट्यूब होती है जिसमें कि KCl का, KNO3 का या NH4NO3 का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। So listen, this salt bridge is used to complete the circuit. ये जो salt bridge है इसे पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। Because we all know that when zinc is oxidized, क्योंकि जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है then it will form Zn+2 आयन and 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है? Zn+2 आयन, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। एंड लिसन, ये Zn+2 आयंस ये जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में घूमते रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर आकर लग जाते हैं? ये जिंक रॉड पर आकर चिपक जाते हैं। एंड लिसन, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर टू सेकेंड कंटेनर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहां से मूव करते हैं पहले कंटेनर से लेकर दूसरे कंटेनर की तरफ। इट मींस जिंक इलेक्ट्रोड से लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और यहां पर प्रेजेंट होता है copper sulfate solution, and copper sulfate solution it will give Cu+2 ion and SO4 2- ion, and this Cu+2 ion present in aqueous solution, ये जो हमारा Cu+2 ion है copper sulfate solution के अंदर, ये क्या करता है? it will accept two electrons and it will change into मेटेलिक कॉपर। इट मींस जो हमारा Cu+2 आयन होता है कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ से आ रहा था, या पहले हाफ सेल की तरफ से आ रहा था, या पहले कंटेनर की तरफ से आ रहा था। इट मींस ये हमारा Cu+2 आयन जो सॉल्यूशन में है वो क्या बनाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर, और ये कॉपर जो हमारी बनती है मेटेलिक कॉपर, नाउ इट विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। इट मींस जो कॉपर हमारी बन रही है वो हमारी डिपॉजिट हो जाती है या जमा हो जाती है कैथोड पर। सो लिसन, फर्स्ट थिंग इज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन भी क्या करते हैं? मूव करते हैं।
या शॉर्ट ब्रिज से जो आयन होगा, रेस्पेक्टिव आयन, वो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा, जिससे कि ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड लिसन, इन दिस सेल करंट विल बी पास्ड, और क्या होगा, इस सेल में करंट पास होगी, देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ ईएमएफ। इट मीन्स अगर करंट पास होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, किस फॉर्म में, सेल के ईएमएफ के फॉर्म में। व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो लिसन, in the first half cell zinc is oxidized and it will lose 2 electron, and in the second half cell Cu+2 ion from aqueous solution it will reduce into metallic copper. It means पहले हाफ सेल में जिंक ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमेशा कहां होती है, एनोड पर होती है। सो दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। एंड दूसरे हाफ सेल में या कॉपर वाले कंटेनर में, जो कॉपर रॉड वाला कंटेनर है, उसमें Cu+2 आयन सोल्यूशन का ये हमारा रेड्यूस होता है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। So listen, first zinc electrode acts as anode and copper electrode acts as cathode। तो कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडाइज होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, क्योंकि जिंक हमेशा कॉपर के ऊपर आता है। सो जिंक इज मोर electropositive and more reactive, so it will oxidize, and copper is less electropositive in comparison to zinc, so it will reduce। it means जो हमारा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जैसे जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा, इसलिए कॉपर क्या होगा, रेड्यूस होगा। नाउ लिसन, very important thing is, we all know that in case of electrolytic cell, anode is represented by positive sign and cathode is represented by negative sign, but the sign convention in electrochemical cell, it is just opposite to the electrolytic cell। it means जो एनोड और कैथोड का साइन कन्वेंशन होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जस्ट अपोजिट होता है। हियर एनोड इज शोन बाय नेगेटिव साइन एंड कैथोड इज शोन बाय पॉजिटिव साइन। तो यहां पर एनोड को नेगेटिव साइन से और कैथोड को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी ऑल नो दैट ईच कंटेनर इज कॉल्ड एज हाफ सेल। जो हमारा हर कंटेनर है वो क्या बोला जाएगा, हाफ सेल बोला जाएगा, क्योंकि पहले कंटेनर में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज, दूसरे कंटेनर में हमारा कॉपर रेड्यूस हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ सेल। सो लिसन, तो पहले कंटेनर में जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जो रिएक्शन होगी, Zn gives out Zn+2 इलेक्ट्रॉन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि जिंक हमारा ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है एनोड पर, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। एंड सेकेंड कंटेनर इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ Cu+2 ion which is present in aqueous solution of copper sulfate. They will accept these two electrons and they will reduce into metallic copper which is deposited at cathode. So listen, this reaction occurs at cathode and this reaction is called as reduction half cell reaction। इसका मतलब कोई भी सेल है तो वो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो दो हाफ सेल से मिलके बनता है,
पहले हाफ सेल को कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे हाफ सेल को कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। पहले में जो रिएक्शन होती है उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, दूसरे में जो रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो हमें सेल रिएक्शन मिल जाएगी। एंड लिसन, नाउ वी विल ऐड these two reactions, oxidation half cell and reduction half cell reaction. So Zn plus Cu plus 2. So 2 electron and 2 electron get cancelled out, goes to Zn plus 2 plus Cu. This is the cell reaction. This will be the cell reaction. And we all know that here zinc is oxidized Zn to Zn plus 2. It means zinc का oxidation हो रहा है और Cu plus 2 आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है Cu में। So listen, it means this cell reaction involve oxidation of zinc and reduction of Cu plus 2 ion. So this reaction occurs, this reaction involve both oxidation and reduction. So it is also called as redox reaction. क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं, इसलिए ये सेल रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी? इट मींस जो यहां पर केमिकल एनर्जी हमारी क्या हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई है। इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन होने के कारण कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। एंड दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी? जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है उसे डेल्टा जी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। दिस इज डेल्टा जी। सो डेल्टा जी इज जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। सो जी प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन सेल रिएक्शन? Zn plus 2 and Cu. So G of Zn plus 2 plus G of Cu minus G of reactant. What are reactant in cell reaction? Zn and Cu plus 2. So minus G of Zn plus G of Cu plus 2. So this will be the change in Gibbs free energy of this cell. Now what will be the relationship between Gibbs free energy and electrode potential? अब हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं। सो लिसन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वी ऑल नो दैट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस NEF। माइनस NEF, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जो हमने सेल लिया है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं जिंक रॉड से, और वही 2 इलेक्ट्रॉन कहां आकर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर। Capital E is EMF of the cell and capital F is Faraday's constant. Capital F is Faraday's constant. So this is the relationship between change in Gibbs free energy, change in Gibbs free energy and electrode potential. What is the change in Gibbs free energy? It is delta G. What is electrode potential? It is capital E. It is capital E. Now we will discuss EMF of the cell. What is the cell EMF? जो cell EMF होगा वो क्या होगा? What will be the EMF or electromotive force of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है हमें
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। इट मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और रिडक्शन के कारण दूसरे इलेक्ट्रोड में रिडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दोनों को हम अगर सम कर दें देन वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तब हमें इस सेल का ईएमएफ मिल जाएगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वी ऑल नो दैट व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड इनटू इट्स सॉल्यूशन then there is a development of potential difference between the surface of rod and its solution. It means जब किसी मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो मेटल रॉड की सरफेस और सोल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से जनरेट हुआ है देन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब इसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ओईपी कहते हैं। एंड लिसन, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब इसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। इट मींस जिंक रॉड या जिंक वाले इलेक्ट्रोड या जिंक वाले हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, जबकि कॉपर वाले हाफ सेल पर क्या डेवलप होगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों को अगर ऐड कर देंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ। सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। इट मींस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज टेकन एट एनोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको एनोड पर लिया गया है प्लस ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज टेकन एट कैथोड। अब हमें पता है जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के निगेटिव साइन के बराबर होता है। इट मींस वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ EOEP इक्वल टू माइनस EREP। इट मींस EOEP की जगह हम लिख देंगे माइनस EREP एंड लिसन इट इज टेकन एट एनोड प्लस EREP एट कैथोड। इट मींस हमने अब क्या किया? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में चेंज कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसका मतलब सेल का ईएमएफ हम तब निकालेंगे जब दोनों ही एनोड और कैथोड पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो। इट मींस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, इसको ये पहले आ जाएगा। सो ई सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल इट विल बी इक्वल टू EREP कैथोड माइनस EREP एनोड। इट मींस अगर हमें दोनों हाफ सेल मींस कैथोड और एनोड मींस जिंक और कॉपर हाफ सेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। और अगर हमें ऑक्सीडेशन मींस एनोड वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तो दोनों को सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ईएमएफ ऑफ द सेल। इट मींस अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर पता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पे पता है, तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर एनोड और कैथोड दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ so what will be the relationship between change in Gibbs free energy delta G and EMF of a cell which is represented by
capital E cell. So listen, we all know that delta G equal to minus NE cell into F, or we can say simple formula delta G equal to minus NEF. What is small n? It is number of transferring electron. Capital F, Faraday's constant. It is also called as charge on 1 mole electron. It means एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे ही कहते हैं Faraday's constant, and its value is 96500 coulomb. What is capital E cell? It is EMF of the cell. It means ये cell का EMF है capital E cell. Now there are three cases. Case 1, if delta G is less than 0. अगर डेल्टा जी हमारा 0 से कम है, मीन्स नेगेटिव है. नेगेटिव कब होगा? जब ई सेल हमारा क्या हो? पॉजिटिव हो. बिकॉज n इज नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. f इज ऑल्सो पॉजिटिव. इट मीन्स डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए ई सेल को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा. इट मीन्स वी कैन से ई सेल विल बी ग्रेटर देन 0. इट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा जी अगर हमारा लेस देन 0 है तो ई सेल हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. इसी का जस्ट अपोजिट होगा. एंड लिसन, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. तब यहां पर सेल रिएक्शन क्या होती है? सेल रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है. If delta G is less than 0, then cell reaction is spontaneous and EMF of this cell is greater than 0. This is the first case. Now case number 2. If delta G is greater than 0, then E cell will be less than 0. It means delta G 0 से बड़ा कब होगा? जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाए. इट मीन्स ई सेल को हमको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव करना पड़ेगा. And then cell reaction will be non-spontaneous. तब सेल रिएक्शन हमारी क्या होगी? ये क्या होती है? It is non-spontaneous. Now last case, case number 3. If delta G equal to 0, it means delta G हमारा 0 हो गया. It means ये 0 तभी हो सकता है जब EMF of this cell it will get 0. ये क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए. It will become 0. So E cell if 0, then delta G will be 0, and then we can say cell reaction is in equilibrium. तब जो हमारी सेल रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी. So there are three cases of delta G. When it is less than 0, then cell reaction is spontaneous. If it is greater than 0, then cell reaction is non-spontaneous. And if it is equal to 0, then cell reaction is in equilibrium. Thank you.